Do you know one thing that the kingdom Monera are largely responsible for maximum number of deaths that occur due to pathogenic infection? Do you also know that our basic fundamental existence to some large extent is also डिपेंडेंट टू दिस किंगडम मोनरा ओनली। अब ये जो न्यूक्लियोइड है ये अटैच है एक वाई शेप्ड फोक लाइक स्ट्रक्चर जिसको मिजोसोम कहते हैं। नूडल्स खाए हो आप लोग? हैव यू एवर एट नूडल्स? कैसे खाते हैं? ऐसे हाथ घुसा के ऐसे खा लेंगे क्या? बट अगर आप रेस्टोरेंट में बैठोगे तो कैसे खाओगे? बिल्कुल आप एक फोक लोगे। Good afternoon. Do you know one thing that the kingdom Monera are largely responsible for maximum number of deaths that occur due to pathogenic infection? Do you also know that our basic fundamental existence to some large extent is also dependent to this kingdom Monera only? So my question is, what is the basic characteristic that make them both as very, very dangerous as well as very, very helpful also? There might be certain useful characteristics in this kingdom that makes them so special that we are studying right now. So one by one, let us consider each of their characteristics. The first characteristic which we know about the kingdom Monera is, of course, they are unicellular. That means their entire body is composed of only one particular cell. Can you believe it? That only one cell is fruitful for us and it can be very dangerous for us also. That one particular cell. So actually it is not that one particular cell that may cause the damage or that is very fruitful for us, but actually they always love to be in a community. They love to be together. They never survive individual. So that is the first thing we should learn something from this kingdom Monera, that your basic existence cannot be by living individual, but you have to learn to live within a community, right? So the first characteristic which we know about them is that they are unicellular. They are unicellular, only single cells, right? Their surface, body surface, like our body surface is covered with skin, right? Our body surface is covered with skin. If you see the fishes, their body surface is covered with scales. Similarly, their body surface is covered with what? Covered with mucilage. Now this mucilage can be thin or thick in layer. It can be both thin as well as thick in layer. What is their role then? See, this mucilage is, somewhat jelly-like. Okay, they are somewhat jelly-like. So, what will be the role for them if they have this mucilage covering? Of course, they will slide over. They will have the gliding effect because of this only. मतलब कि वो आराम से स्लिप करेगा सरफेस के ऊपर, ठीक है? So why we are studying all these things? Very, very important. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ ऐसा मेडिसिन डिस्कवर करो कि वो मान लो अगर पैथोजेनिक हुआ, इफ इट इज पैथोजेनिक, तो हम क्या करेंगे? व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम उसको उस म्यूसिलेज को डिसरप्ट कर देंगे। यू कैन थिंक इन लाइक दैट वे आल्सो। तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा, सही से मूव नहीं हो पाएगा। ऑफ कोर्स आप उसको एक जगह पे रोक दिए एंड देन योर इम्यून सिस्टम हैज द पोटेंशियल एनफ टू डैमेज, गिव द डैमेज, राइट? तो ये जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट, दे आर यूनिसेलुलर। सेकंड, देयर बॉडी सरफेस इज कवर्ड विद अ म्यूसिलेज एंड इट कैन बी थिन और थिक। तो ऑफ कोर्स इट इज अ gluey substance which is responsible for locomotion. So as I say, let me draw the same thing over here in parallel. Third, all the bacterium, okay, they are covered with a cell wall. Now this cell wall is different from that of the plant cell wall. Plant cell wall बिल्कुल उसके अलग chemical composition है, but इसके chemical composition बिल्कुल अलग है, okay? So each bacterium, each this moneron is generally covered with a cell wall. Now ये cell wall can be of nature peptidoglycan. इनका chemical composition क्या है? Peptidoglycan. यहाँ पे देखिए दो टर्म लगा हुआ है, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन, यानी
कहीं ना कहीं ये शुगर के साथ एक प्रोटीन अटैच होगा, तभी हम लोगों ने इसको क्या कहा, पेप्टाइडोग्लाइकन। इट इज ऑल्सो नोन एज म्यूकोपॉलीपेप्टाइड और म्यूरिन. Now this peptidoglycan or a mucopolysaccharides or a murine formed by N-acetyl-glucosamine and it is also known as N-acetyl-glucosamine, यानी कि नाग नहीं बोलेंगे, नाग बोलने से वो सांप हो जाएगा. अनदर कंपोनेंट जो होगा N-acetyl-muramic acid, तो यहां से हो गया N-acetyl-muramic acid, what we will say as NAM. ठीक है. एंड स्मॉल पेप्टाइड, तो एक स्मॉल छोटा सा पेप्टाइड चेन होगा जनरली ऑफ 3 to 5 अमाइनो एसिड चेन होगा. तो इन तीन चीजों से मिलकर ये पेप्टाइडोग्लाइकन बना है. और पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, वो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है जो बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल है. ठीक है. तो अब हम लोग पैरेलली इस फिगर को भी बनाते हैं कि कैसा वो बैक्टीरियम सेल दिखेगा इन जनरल. सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक यूनिसेलुलर होगा. लेट अस ड्रॉ अ यूनिसेलुलर व्हिच इज कवर्ड विद अ म्यूसिलेज एंड कवर्ड विद अ सेल वॉल. So let us draw a cell wall first. The first thing which we are going to see is this one is the capsule, then this one is the cell wall, जिसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. Mongrel cells are always covered with a cell wall. ठीक है. अब ये cell wall generally या तो thick होगा, this cell wall will be thick in case of certain bacteria while it will be thin in case of some another group of bacteria. तो जिनमें ये थिक होगा उनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिनमें ये सेल वॉल थिन होगा उनमें वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं. द क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन ओनली, दैट सर्टेन बैक्टीरिया इज after staining process was identified that it was a gram positive bacteria. So tell me the composition of the cell wall, whether or not it will be a thick cell wall or a thin cell wall. तो of course हमें पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनका वो जो सेल वॉल होगा वो काफी थिक होगा एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम जिनके सेल वॉल क्या होंगे, थिन होंगे. अगर परसेंटेज की बात की जाए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ड्राई वेट अगर देखा जाए, उनका बॉडी का ड्राई वेट, तो सेल वॉल का अगर परसेंटेज देखा जाए तो इट ऑलमोस्ट अकाउंट्स टू 40 to 90% ऑफ द ड्राई वेट, वेयर एज दिस ग्राम नेगेटिव वन इट इज जस्ट 10% ड्राई वेट. तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो, यू कैन फिगर इट आउट दैट how much thick would be the cell wall in case it is a gram positive bacterium, whereas how much thin it will be in case of it is a gram negative bacterium. Clear? Are you getting my point? हम लोग इससे क्या मतलब डिड्यूस कर सकते हैं, मतलब why we are reading कि सेल वॉल थिक है थिन है, उससे मेरे को क्या, what I will do, ये क्वेश्चन आने चाहिए. You should consider this question, why we are studying the thickness and of the cell wall of a bacteria. The answer to this question will be, suppose कीजिए a bacterium is infecting a human और स्टेनिंग प्रोसेस के बाद ये पता चल रहा है कि वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम है, तो आप उसके अगेंस्ट में किस तरह का ड्रग अप्लाई करोगे, किस तरह का मेडिसिन अप्लाई करोगे. ऑफ कोर्स आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा उसका सेल वॉल को डिसरप्ट करना, उसके सेल वॉल को तोड़ना, क्योंकि उसका सेल वॉल काफी मोटी है. ठीक है, इट्स वेरी थिक. तो अब हमें पता चल रहा है, तब तो हम वैसा ड्रग डिजाइन करेंगे. ये बिल्कुल वैसा ही हुआ. सपोज कीजिए कोई एक कंट्री के आर्मी दुश्मन कंट्री में अटैक करने जाता है और वो अगर सामने वाले खेमे को अगर डैमेज करना चाहता है और वो सुतली वाला बम फेंक के मारेगा तो क्या होगा, उसका टैंक उड़ेगा. सुतली वाला बम फेंक के मारेगा तो उसका टैंक उड़ेगा, नहीं उड़ेगा. तो अगर उसका टैंक को उड़ाना है तो क्या करेंगे, बड़ा वाला बम मारेंगे, ऊपर से रॉकेट से मारेंगे. हमें पहले पता होना चाहिए वो टैंक किस किस्म का है, वो बम कौन सा बम का इंटेंसिटी वो झेल पाएगा. राइट. तो ये चीज भी यहाँ अप्लाई होता है. अगर हमें पता ही नहीं कि उसका वो ग्राम पॉजिटिव है या नेगेटिव है और मैंने मेडिसिन दे दिया तो वो तो किसी काम का नहीं है. अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम हुआ, क्योंकि उसका सेल वॉल थिक है, मेडिसिन तो एंटर कर ही नहीं पाएगा, सो दैट इट कैन किल द बैक्टीरियम. इन मोनेरन्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ऑफ कोर्स इनमें ना न्यूक्लियस एब्सेंट नहीं है, इसीलिए ना ही उनके न्यूक्लियर बाउंड्री प्रेजेंट है.
तो न्यूक्लियस एब्सेंट है ऑफ कोर्स। दिस इज द रीजन इन्हें प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो इनका डीएनए क्या होगा, डीएनए इज naked and it is attached to Y-shaped fork-like structure जिसको क्या कहेंगे, mesosomes, we call it as mesosomes। तो इनमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, डीएनए बिल्कुल नेकेड है, सर्कुलर है, ठीक है। वी ऑफन कॉल इट एज अ न्यूक्लियोइड ऑल्सो, ओके, वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड ऑल्सो, क्योंकि ये न्यूक्लियस तो बिल्कुल से एब्सेंट है, ठीक है। न्यूक्लियस इनमें एब्सेंट है, डीएनए जो होगा वो सर्कुलर स्ट्रक्चर का हो जाएगा, बिल्कुल नेकेड है। जैसे हमारे यूकैरियोट के केस में सर्टेन प्रोटीन्स है जो उसको एंटेंगल करके रखता है, कॉम्पैक्ट करके रखता है, इनमें वैसा कुछ नहीं दिखेगा, इनमें सर्कुलर डीएनए रहेगा, नेकेड डीएनए रहेगा, जिनको हम लोग होल्ड टुगेदर क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। वी आल्सो कॉल इट एज न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। अब ये जो न्यूक्लियोइड है ये अटैच है एक वाई शेप्ड फोक लाइक स्ट्रक्चर जिसको मिजोसोम कहते हैं। नूडल्स खाए हो आप लोग, हैव यू एवर एट नूडल्स? कैसे खाते हैं, ऐसे हाथ घुसा के ऐसे खा लेंगे क्या? बट अगर आप रेस्टोरेंट में बैठोगे तो कैसे खाओगे? बिल्कुल आप एक फोक लोगे, फोक लेकर आप क्या करोगे, ऐसे इंटेगल करोगे, सपोज दिस इज अ फोक, ये आपका फोक हो गया वाई शेप, और इसमें आप सर्कुलर नूडल्स को फंसाओगे और फिर आप बड़े ही प्यार से ध्यान से यू विल कंज्यूम इट अप। कहीं ऐसा तो नहीं करने वाले हो कि रेस्टोरेंट में बैठे और वो नूडल्स आपको हक्का नूडल सर्व किया और आपने ऐसे हाथ घुसाया और ऐसे ऐसे चाट चाट के खा रहे? आई डोंट थिंक सो आप ऐसा करोगे। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप ऐसा वाई शेप फोक रहेगा, उसमें आप नूडल्स को अच्छे से गोल ट्विस्ट करोगे एंड देन यू आर गोइंग टू। सिमिलरली इनका भी ऐसा ही रहता है। लेट अस ड्रॉ देयर न्यूक्लियस नाउ। मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियस एब्सेंट है तो डीएनए नेकेड होगा, सर्कुलर इन स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड या जेनोफोर भी कहते हैं, और वो किससे अटैच रहेगा, फोक लाइक स्ट्रक्चर जिसको मिजोसोम कहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होता है। तो दिस इज द वाई शेप फोक लाइक स्ट्रक्चर मिजोसोम, और इसमें क्या होगा, इनके जो सर्कुलर डीएनए एंटेंगल्ड आउट सर्कुलर डीएनए रहेंगे। दिस इज द मिजोसोम, this is the plasma membrane, this is the nucleoid DNA which I was discussing। तो based upon their characteristics अभी तक हम लोगों ने फिगर को कुछ इस तरह से डिकोड किया, ठीक है। एक कैप्सूल देखा क्योंकि यूनिसेल्युलर है, और they are covered with a mucilage, some glue like substance, इसी में रहते हैं, ठीक है, कैप्सूल में, and they are covered with a cell wall। ये जो vacant region है, this is the cell wall, I have mentioned it out, and after this there will be of course a plasma membrane। Then we have seen that their nucleus is absent, so of course DNA is circular in nature, naked DNA जिसको हम लोग न्यूक्लियर डीएनए भी कहते हैं या जेनोफोर भी कहते हैं। This DNA is attached with a Y-shaped fork called as mesosome। इनमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल रिंग्स ऑफ डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं, we call it as प्लाज्मिड्स। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल नेचर का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा कह रहा है, यानी ये डीएनए के अपार्ट फ्रॉम दैट आल्सो देयर विल बी सर्टेन प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इन नेचर होते हैं, ये इनमें प्रेजेंट होंगे। ये जो प्लाज्मिड होगा ये नॉन वाइटल है, ये नॉन वाइटल है। वाइटल का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम को आप हटा दो तो सर्वाइवल पे बात आ जाएगा, लेकिन अगर ये प्लाज्मिड को हटा दो तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं करे, तो ये नॉन वाइटल है। फर्स्ट केस, दिस प्लाज्मिड्स आर द नॉन वाइटल। तो इसमें होते क्या है, बट दे कंटेन सर्टेन स्पेशल जीन्स, इनमें बहुत ही खास जीन्स अवेलेबल होते हैं। दे कंटेन अ वेरी वेरी स्पेशल जीन, ठीक है। फर्टिलिटी प्लाज्मिड्स इन एफ प्लाज्मिड्स। दूसरे, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स in R plasmids, bacteriocins और कोलिसिन्स in कोल प्लाज्मिड्स, और ऐसे in कोल प्लाज्मिड। तो ये नॉन वाइटल है बट वेरी वेरी स्पेशल जीन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। एक क्लासिक उदाहरण ही ले लो ना, ये रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। कुछ कुछ केसेस में आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। आज के डेट में जो ट्यूबरक्लोसिस आते हैं वो एक्सडीआर रेंज तक पहुंच गए, यानी एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट। पहले होता था एमडीआर, यानी मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट। आप उसमें 2-3 किस्म का मेडिसिन चलाओ तो हो सकता है वो किसी में काम ही ना करे। वाई? क्योंकि उनमें ये आर प्लाज्मिड अवेलेबल है। अब आप सोचोगे, अब दिमाग में आना चाहिए कि अगर
हम ऐसा एक मेडिसिन ही बना दें कि उसका ये आर प्लाज्मिड को ही हटा के फेंक दे, तो जाहिर सी बात है जो रेजिस्टेंस वो पैरा कर रहा है वो बैक्टीरियम, वो तो नहीं हो पाएगा ना। तो साइंटिस्ट आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन ऑल्सो, दैट इज द रीजन वी आर स्टडिंग दीज थिंग्स। ओके, देन राइबोसोम्स, जनरली राइबोसोम्स इनमें जो होगा वो 70s नेचर के होते हैं। राइबोसोम्स 70s नेचर क्या है, तो पहले हम ये बता देते हैं राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम एक्चुअली क्या होता है, वो प्रोटीन बनाते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक कोड आ जाएगा mRNA जैसा कोड, और उसके ऊपर क्या होगा, राइबोसोम अटैच कर जाएगा एंड वहां से एक प्रोटीन बनना चालू हो जाएगा। यहां तक तो राइबोसोम के बारे में क्लियर है। जब राइबोसोम को डिटेल में हम लोग समझेंगे तो उस टाइम और डिटेल में बताएंगे। अब बैक्टीरियम्स में जो राइबोसोम होते हैं वो 70s नेचर के होते हैं। 70s, एस मतलब क्या होता है, स्वेटबर्ग यूनिट, साइंटिस्ट के ऊपर स्वेटबर्ग यूनिट। अब ये हमारे केस में क्या हो जाएगा, 80s नेचर के होते हैं। बैक्टीरियम के केस में 70s नेचर, ह्यूमन के केस में 80s नेचर। राइबोसोम के केस में ये जो दो यूनिट से मिलके बनते हैं, एक लार्जर यूनिट, एक स्मॉलर यूनिट। तो जो लार्जर यूनिट होता है 50s नेचर का होता है, और जो स्मॉलर यूनिट होता है वो 30s नेचर का होता है। अब यहाँ पे आर्यन सोच रहा होगा ये कौन सा मैथ समझा रहे हैं सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बायोलॉजी वाला मैथ है। हम लोग डिटेल में समझेंगे कि 50 और 30s मिलके 70s कैसे हो गया। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो कि जो बैक्टीरियम में राइबोसोम होते हैं 70s नेचर के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम पूरा फोकस यहाँ पे डाल दीजिए, एकदम 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आ जाता है। ठीक है, कि मोनरल्स में कौन सा नेचर ऑफ राइबोसोम आते हैं और उसके सब यूनिट्स क्या है। ठीक है, तो ये 70s नेचर के राइबोसोम होंगे बैक्टीरियम्स के केस में, और सब यूनिट क्या होगा, लार्जर वाला 50s एंड स्मॉलर वाला होगा 30s। मिलके ये क्या बनाता है, 70s। ह्यूमन के केस में, हमारे केस में 80s है, ह्यूमन के केस में 80s है, तो जाहिर सी बात है वहां पे भी लार्जर यूनिट सब स्मॉलर सब यूनिट होगा। 60 एंड 40s मिलाकर 80s बनता है। ठीक है, तो डोंट गो इनटू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये अलग एक तरीका है जो हम लोग राइबोसोम जब डिस्कस करेंगे वहां पे डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये 50 और 30 मिलकर 70 होता है। अभी के लिए ये समझ लो कि राइबोसोम बैक्टीरियम के केस में 70s नेचर के होते हैं, लार्जर वाला 50s, स्मॉलर वाला 30s। दोनों को सम करके 80s मत कर देना, वो एग्जाम में भी देगा 80s, कंफ्यूज करेगा आपको। तो लेट अस ड्रॉ दिस राइबोसोम ओवर हियर। ये लार्जर यूनिट हो गया, ये स्मॉलर यूनिट हो गया, ये लार्जर सब यूनिट, ये स्मॉलर सब यूनिट। दिस इज द आवर mRNA होगा, और वहां से प्रोटीन बनना चालू होगा। We call it as polysomes. Okay, of course this will be the cytoplasm, dot structures. Okay, so this is the cytoplasm. Next, unlike plant, bacteriums में क्या होगा, vacuoles are absent, vacuoles are absent, but ध्यान दीजिए जो एक्वाटिक बैक्टीरियम्स होंगे ना उनमें ये वैक्यूल्स प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा, फॉर मेंटेनिंग द बायोन्सी एज वेल एज टू कोप अप विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। वैक्यूल्स बैक्टीरियम में एब्सेंट होगा, प्रेजेंट कब होगा, एक्वाटिक बैक्टीरियम्स में, प्रेजेंट इन द एक्वाटिक फॉर्म, प्रेजेंट एमंग द एक्वाटिक फॉर्म्स। क्यों होगा, रीजन क्या है, टू मेंटेन द बायोन्सी, मेंटेन बायोन्सी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रेडिएशन। कई तरह के रेडिएशन हो सकते हैं एक्वाटिक फॉर्म में, तो उनसे ये प्रोटेक्ट करेगा वैक्यूल, और साथ ही साथ बायोन्सी भी मेंटेन करेगा। तो वैक्यूल्स इसलिए प्रेजेंस होंगे सिर्फ और सिर्फ एक्वाटिक वाले में, और किसी में नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन वन। सेकेंड, ऑल द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, गोल्जी बॉडीज हो गए, एक्सेट्रा आर एब्सेंट। मेम्ब्रेन बाउंड मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके, देयर इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये तो इनर मेम्ब्रेन हो गया, इसके बाहर में एक और मेम्ब्रेन होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, इस तरह के मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनमें एब्सेंट है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब एवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम इन लोगों को पता नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। विद टाइम ऑफ एवोल्यूशन धीरे धीरे मेम्ब्रेन आना भी चालू हो गया, एवरीथिंग केम इन, और बेस्ड अपॉन द सराउंडिंग, जो एनवायरमेंट उस टाइम रहा था उस एनवायरमेंट के अनुसार इनमें चेंजेस धीरे धीरे आए थे। तो दैट इज द रीजन ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स इनमें एब्सेंट है। फोटो ऑटोट्रोपिक फॉर्म कंटेन बैक्टीरियोफिल्स इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल। तो
इनमें जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है सभी टाइप दिख जाएंगे एक्सेप्ट द फैगोट्रॉपिक। ऑलरेडी मैंने बता दिया था फैगोट्रॉपिज्म क्या होता है। तो इनमें ऑटोट्रॉपिक दिख जाएगा। कीमो मतलब केमिकल, केमिकल को यूज करके ये फूड बना रहा है उसको कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप मतलब क्या है, लाइट को यूज करके फूड बना लेना, फोटो ऑटोट्रॉप। अब पैरासिटिक मतलब किसी और होस्ट में जाना एंड देन वहां पे अपना न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट आउट करना, वी कॉल इट एज अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देन सेप्रोट्रॉपिक किसी ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर जाकर वहां से अपना फूड न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट आउट करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप। नाउ मोटिलिटी की अगर बात करें तो ये इनमें कुछ ग्लाइडिंग इफेक्ट भी दिखेगा, फ्लेक्सियन या फ्लैजिला भी हेल्प करते हैं उनको मोटिलिटी देने के लिए। ठीक है, अब ये फ्लैजिला जो है ये मेड ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये बैक्टीरियम में ये फ्लैजिलम बना हुआ है, सिंगुलर फ्लैजिलम प्लूरल फ्लैजिला। ठीक है, तो ये फ्लैजिलम क्या है, मूवमेंट का काम करेगा। ठीक है, दिस हेल्प देम फॉर द मूवमेंट पर्पस। देन इनमें कुछ प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ भी दिखेगा। प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ मतलब क्या है, उसके बॉडी के सरफेस के बाहर कुछ ऐसे आउटग्रोथ निकले रहेंगे जिनको फिम्ब्रिए भी कहेंगे। कुछ केसेस में पिली भी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये फिम्ब्रिए, इसको आप एज अ फ्लैजिलम कंफ्यूज मत होना, ये फिम्ब्रिए है, ये जो ऐसे फिंगर लेग प्रोजेक्शन हो रखे हैं। ठीक है, तो पिली जो है वो कंजुगेशन में रोल में आता है, वेयर एज द फिम्ब्री फॉर अटैचमेंट। व्हाई डू वी स्टडी दिस फिम्ब्री, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया में वो पहले होस्ट को अटैच करेगा तभी वो अपना इफेक्ट को दिखा पाएगा। अगर आप ऐसा कुछ एक मेडिसिन बना दो कि वो जहां पे अटैच कर रहा है आप उसके फिम्ब्री को अटैक करो, तो वो फिम्ब्री डिसरप्चर हो गया तो अपना पैथोजेनिक इफेक्ट दिखा ही नहीं पाएगा। फाइन, दैट इज द रीजन वी आर स्टडीइंग दिस थिंग। रिप्रोडक्शन देखा जाए तो इनमें रिप्रोडक्शन फिजन के जरिए भी होता है। फिजन कैसे होगा, जैसे एक सेल होगा, इट विल डिवाइड इनटू टू डिफरेंट डॉटर बैक्टीरियम। ठीक है, तो ये फिजन हो गया। बटिंग के केस में क्या होगा, दैट इट विल बर्ड आउट, some bird out, main bacterium mother bacterium will be there out of which daughter bacterium will bud out। तो ये एक भी मेथड होता है। देन स्पोर फॉर्मेशन होते हैं, वेयर सर्टेन स्पोर्स विल बी फॉर्म, जो कि रिलीज आउट होने पर वो क्या है, फर्दर एज अ बैक्टीरिया फॉर्म करेगा। तो ये प्योरली ए सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है, वेयर एज द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जनरली अगर इफ एट ऑल, जो कि पीली के मदद से होता है, उस केस में क्या होगा, ये जीन रिकॉम्बिनेशन होगा ना। व्हाट इज जीन रिकॉम्बिनेशन, जैसे उदाहरण के तौर पे ले लीजिए एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, ठीक है, सॉरी एक रेजिस्टेंट एक बैक्टीरिया है विच इज रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक। ठीक है, तो ऑफकोर्स उसमें प्लाज्मिड जो होगा आर प्लाज्मिड होगा। अब ये रेजिस्टेंस वाला अगर कोई एक सामने वाले बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाए तो ये जीन रिकॉम्बिनेशन कहलाएंगे। ठीक है, नाउ ये जीन रिकॉम्बिनेशन को हम लोग अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है जिसको हम लेटर ऑन कभी आप लोगों को बता देंगे कि जीन रिकॉम्बिनेशन क्या है और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरियम कैसे होता है। ये एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना देंगे जिसको आप लोग देख के समझ सकते हो। रिजर्व फूड, सभी ऑर्गेनिज्म में रिजर्व फूड होते हैं और इसके केस में क्या है, ग्लाइकोजन है। ये रिजर्व फूड सभी में अवेलेबल है, हमारे में भी अवेलेबल है, प्लांट्स में भी है। सिमिलरली बैक्टीरियम्स में जो रिजर्व फूड होता है दैट इज द ग्लाइकोजन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द साइज ऑफ द बैक्टीरियम, क्या साइज के होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियम का साइज जनरली तो इन कॉमन सेंस अगर बोला जाए तो वो माइक्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, यानी कि नेकेड आंखों से आप बैक्टीरियम को नहीं देख सकते हो। बट अगर आप माइक्रो लेवल पे उतर जाओ तो इनका जो साइज होता है दैट इज 3 to 5 माइक्रोन होता है। 3 to 5 माइक्रोन यानी कि ये कितने हो जाएंगे, 1/1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1/1000 मिलीमीटर होते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो ये कितने छोटे साइज में होते हैं। एंड इनफैक्ट द स्मॉलेस्ट बैक्टीरियम जो अवेलेबल है उसका नाम क्या है, डायलिस्टर न्यूमोसिन्स। साइज हो जाएगा ऑलमोस्ट 0.15 म्यू माइक्रोन मीटर। ये डायलिस्टर न्यूमोसिन्स जानते हो, कुछ केसेस में इट रिजल्ट्स ऐसा देखा गया है, ब्रेन एब्सेसिस में इसका रोल रहा है। अब ये ओरिजिनेट कहां होता है, ह्यूमन बॉडी में कैसे आ जाएगा ये,
इनका ओरिजिन पॉइंट अगर देखा जाए ना, या तो नेजोफेरिन झील रहा है या फिर डेंटल ओरिजिन रहा है। इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बायोलॉजिस्ट या माइक्रोबायोलॉजिस्ट या द डॉक्टर्स, दे ऑलवेज अवॉइड दिस किसिंग थिंग, क्योंकि नोबडी नोज व्हाट टाइप ऑफ बैक्टीरिया माइट एंटर। इट विल बी जस्ट लाइक आप मेरे को मार, ठीक है, so they never love to do this thing, ठीक है। That's all for today. We will again discuss a little bit more about the kingdom Mundra in our next class. So far any doubt, you may please ask.